Got too many flows, I be killing them. Oh baby, tell me say she feeling them. Ain't worth the mile, it's a million them. Say baby, I. This is Indian license, cost of making 4,000 rupees. And this is Dubai driving license, cost of making 2 lakh rupees in dirhams, 10,000 dirhams. So now you might be wondering that what is so special about Dubai driving license? Well, here are some amazing facts that make it stand out. First, Dubai license is recognized in more than 50 countries, including UK, Australia, and Europe. That means you can drive internationally with ease. Hello everyone, my name is Mayank and you are watching Thoda Desi, Thoda Videsi. And today's topic is how to get a Dubai driving license in just 1 month. Getting a Dubai driving license is a dream for many, but most of the people take 3 to 6 months to getting a driving license. Today I will show you how to get a Dubai driving license in just 1 month. Yes guys, in just 1 month. This is my complete guide step by step with real cost, documents and tip to pass the first attempt. So make sure you watch the vlog till end because there will be a lot of things, lot of tips I will be sharing in middle of the clip, so you don't miss it. Please watch till end. So first thing first, I'm going to talk about the documents which will be required while taking a Dubai driving license. So first, it's the Emirates ID, which is very important. Second is your passport. Third is the eye test from RTA. I'll give you one tip. Make sure do your eye test before the registration to save your time. Now second and most important, choosing a driving school in Dubai. This is very hot topic nowadays because when people try to get a license, they always think which school they should go to make the registration for their driving license. And there are a lot of driving schools, and from which I passed was the Galadhari. All the schools are same. All the schools have different fee structure. This all schools are authorized by the RTA. So guys, I will suggest उस स्कूल में अप्लाई करो जो स्कूल आपके अकोमोडेशन से बिल्कुल पास हो, क्योंकि आपको क्लासेस के लिए, आपको असेसमेंट टेस्ट के लिए, आपको फी पेमेंट के लिए डेली जाना पड़ेगा या वीकली जाना पड़ेगा, तो आपके घर के पास होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा. बाकी सब स्कूल सेम है, सेम उनके रूल्स है, सेम उनके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स है. तो मैं बात करता हूँ दोस्तों कि कॉस्ट रेंज कितनी आने वाली है. अगर आप स्टार्टिंग हो, एज अ बिगनर हो, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आपके पास अपनी कंट्री का अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इफ यू आर बिगनर, सो इट विल कॉस्ट यू 4,000 dirhams till 7,000 dirhams इंडिविजुअल पैकेज, नॉट द अनलिमिटेड पैकेज. अनलिमिटेड पैकेज का अलग सीन है, में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं. इंडिविजुअल में आपके आई थिंक एक अटेम्प्ट होता है, उसमें आपको क्लियर करना पड़ता है और जैसे आप फेल होगे तो वैसी कॉस्ट बढ़ती जाएगी. तो इसमें मेरी क्या टिप है दोस्तों, इसमें आप चूज करना गोल्डन या एक्सप्रेस कोर्सेज. उसमें क्या होगा, वो आपको बैक टू बैक क्लास देंगे और बैक टू बैक आपके टेस्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी प्रोसेस होगा और इसमें आप विद इन 1 month अपना लाइसेंस आप ले लोगे. सो ट्राई टू गेट गोल्डन और एक्सप्रेस कोर्सेज. वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, बट इफ यू वांट टू गेट इन 1 month, इजी है. तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस की. तो ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आई टेस्ट करना पड़ेगा जो कि मैंने बोला आरटीए से, और थ्योरी क्लास के लिए एनरोलमेंट करना पड़ेगा. अब जो ये थ्योरी क्लास है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस दी जाती है जिसमें कि 40 क्वेश्चंस होते हैं और आपको पास करने होते हैं एट द एंड टू गो फॉर द ड्राइविंग डायरेक्टली ऑन द रोड्स. इसमें 8 थ्योरी क्लासेस होती है दोस्तों. इसमें हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है और आई थिंक उर्दू भी होती है. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पास करने पड़ते हैं. 40 क्वेश्चंस होते हैं और एटलीस्ट आपको 35 चाहिए पासिंग के लिए. अगर आप 35 से नीचे स्कोर करते हैं तो आपको दोबारा फी पे करनी पड़ती है, दोबारा टेस्ट होता है. तो मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ो और बेसिक क्वेश्चन होते हैं. इट्स नॉट लाइक अ बिग थिंग, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. जैसे इफ यू वांट टू गो टू राइट और इफ यू वांट टू गो लेफ्ट, विच इंडिकेटर यू विल गिव. और फिर आपसे पूछेंगे कि जब 2 लेन है, इसमें से ओवरटेक कर सकते हैं कि नहीं है, तो सॉलिड पट्टी है उसमें हम क्या करना चाहिए, जो डॉटेड पट्टी है उसमें क्या करना चाहिए. इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस. सो व्हेंस यू विल गो टू द थ्योरी क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड इजीली. सो वंस यू पास दिस थ्योरी टेस्ट, देन इट्स द टाइम to catch the steering of your car. जैसे आप थ्योरी क्लास पास करोगे, आप प्रैक्टिकल क्लास के लिए रेडी हो. आप फर्स्ट दिन जाओगे, आपका जो इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको फोन करेगा, इस टाइम आना है, उस टाइम आप जाओगे. और जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें ब्रीफली आपको गाड़ी के बारे में बताया जाता है कि गाड़ी का ये इंजन पार्ट होता है, गाड़ी में इतने सिलेंडर इंजन है, इतना लीटर इंजन है, इतने इसमें ये चीज किस लिए काम आती है, हैंड ब्रेक किस लिए काम आता है, म्यूजिक सिस्टम के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जाएगा. मतलब छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा पूरी गाड़ी के बारे में कि इन फ्यूचर आपको कोई अगर दिक्कत होती है, जब रोड पे दिक्कत होगी तो आपको दिमाग में होगा अगर ये चीज यहाँ खराब है तो ये चीज से आई थिंक फिक्स हो सकता है, वरना आपको कॉल करना पड़ेगा. सो इवन स्मॉल बेसिक थिंग्स दे विल टेल यू इन ब्रीफ. तो ये सब कुछ बताने के बाद आपकी जो आधा घंटा बचेगा उसमें आपको स्कूल के अंदर ही ड्राइविंग करवाएंगे, आपसे चलवाएंगे गाड़ी कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आपको गाड़ी के बारे में कुछ पता है, आपको हैंडलिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा चलाएंगे. पहले दिन की जो क्लास होती है वो बेसिक होती है बिल्कुल,
और जब आप दूसरी क्लास के लिए जाओगे तब वो आपको पूरा सिखाएंगे, कैसे कि आपको रोड पे चलना है, कैसे आपको पार्किंग करनी है, सब कुछ। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों पार्किंग की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग, मैं खुद 3 बार फेल हुआ हूँ पार्किंग में दोस्तों। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें 3 तरह की पार्किंग होती है, एंगल पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, गैराज पार्किंग। और सबसे डिफिकल्ट जो मेरे को लगी थी वो थी गैराज पार्किंग। तो जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे होगे अभी, इसमें आपको तीनों पार्किंग दिखाई गई है, गैराज पार्किंग भी है, पैरेलल पार्किंग भी है, एंगल पार्किंग भी है। ये कुछ पार्किंग होती है दोस्तों जो आपको क्लियर करनी पड़ती है आगे आने वाले टेस्ट में। तो जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको इजीली वे में अच्छे से समझाएगा कि जैसे ही आप एंगल पार्किंग की कॉर्नर पे आओगे तो जो आपको मिरर होगा, साइड मिरर, उस पे आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि 8 से 10 पॉइंट्स होते हैं, वो चेक करने पड़ते हैं। जैसे ही आपकी डॉट लाइन पॉइंट्स साइड मिरर में दिखने लग जाती है तो आपको आधा स्टीयरिंग काटना है। फिर आपको लेफ्ट मिरर पे देखना है, लेफ्ट मिरर में आपको अगर आपका बैक दिख रहा है तो पूरा स्टीयरिंग काट के इजीली अंदर घुस जाना है। तो ये बिगिनर के लिए बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो मैंने भी यही किया था, बट वही है ना, कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर सकते हो, बट वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आया तो मैं पास हो गया। पार्किंग करोगे तो आपको हर एक पॉइंट्स बताया जाएगा बाय इंस्ट्रक्टर। वो आपको बताएगा कि आप पैरेलल पार्किंग कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप वही चीज़ बिल्कुल टेस्ट में करोगे तो 101% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों पास हो जाओगे विद कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग की, तो वो जो आपकी पार्किंग की ट्रेनिंग है वो होगी आई थिंक 8 से 10 घंटे के बीच में 3 से 4 सेशन, और उसमें आपको अच्छे से पार्किंग आ जाएगी। और जो पार्किंग टेस्ट होते हैं उसमें एक चीज़ याद रखना, जो भी आपकी जब तक मसल मेमोरी नहीं हो जाती उस चीज़ को एक्स्ट्रा क्लास ले लो, चाहे उनको एक्स्ट्रा पे कर दो, बट पार्किंग में लोग फेल होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक वो आपकी मसल मेमोरी नहीं हो जाती ना, जब तक आपका हाथ खुद ही नहीं मुड़ता, खुद ही हैंडल नहीं मोड़ते आप, जब तक आप टेस्ट मत बुक करना। फुल परफेक्ट हो जाओ पार्किंग में, क्योंकि पार्किंग में सिर्फ आप होगे और गाड़ी होगी और हमारे सैटेलाइट से जो इंस्ट्रूमेंट जुड़े होते हैं वो टेस्ट आप कर लेंगे। जो इंस्ट्रक्टर होगा, जो आरटीए से आएगा, वो सिर्फ अंदर बैठा हुआ ऑफिस में, और सब कुछ आपका अंदर कैसे चल रहा है, अंदर कैसे टेस्ट हो रहा है, वो सब कुछ सैटेलाइट से थ्रू टीवी देखेगा आपको। आप जब टेस्ट करोगे आपका थम्स अप करना पड़ेगा, आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, आपको हेड चेक करना पड़ेगा, आपको मिरर चेक करना पड़ेगा, हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको थंब करना है कि आई एम रेडी फॉर द टेस्ट। फिर आप अपना बैक गेयर डालोगे, इंडिकेटर के साथ बैक करोगे। फिर आप स्लोप टेस्ट पे जाओगे। स्लोप टेस्ट पे आपको हैंड ब्रेक करना पड़ता है, फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग करना पड़ता है। आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करना मतलब आपको बिल्कुल वहीं ब्रेक मारना है। ऐसे मत सोचना कि भाई हल्के हल्के मारूं कि गाड़ी टूट जाएगी। आपकी गाड़ी है भी नहीं, आप जितना इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी जब भी ब्रेक मारना तभी पास हो गया। फिर आप उसके बाद आती है आपके पार्किंग टेस्ट, जिसमें एंगल, पैरेलल और गैराज होगी। आपको 1 बाय 1 आपको क्लियर करनी पड़ेगी, और जैसे वो क्लियर हो जाएगी आप जाओगे पार्किंग करने के लिए, तो ऊपर आपको ग्रीन या रेड साइन दिखेगा। अगर ग्रीन है तो आप पास हो गए, अगर रेड है तो आप फेल हो गए। आपको इंस्ट्रक्टर जाने के पास जरूरत भी नहीं है, वो आपको गाड़ी से निकलते ही पता चल जाएगा। मेरे साथ हुआ था, मैं निकलते में देखा, ओ माय गॉड दिस इज रेड, दैट मींस आई एम फेल। अब मैं बात करता हूँ रोड ड्राइविंग की। जो रोड ड्राइविंग है वो ज्यादा होती है, उसमें 20 घंटे से लेके 25 घंटे की ड्राइविंग आपको सेशन दिया जाता है। उसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्टर आपके साइड में बैठा होगा और आप गाड़ी चला रहे होंगे। आपको हर एक छोटी छोटी चीज, हर एक बारीक बारीक चीज वो आपको इंस्ट्रक्टर बताएगा। कैसे आपको एक्सीलरेट करना है, कैसे आपको ब्रेकिंग करनी है, कैसे आपको राउंड अबाउट पे घूमना है, कब आपको वेट करना है, कब आपको सिग्नल चेक करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाएगा। तो उस टाइम सब कुछ भूल जाना अपने दिमाग से, सिर्फ अपना दिमाग, अपना गाड़ी और जो आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठा है उसके साथ रखना। जो जो वो बोले वो करना। वो आपको हर एक छोटी चीज बताएगा, और जब वो चीजें आप सुनोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज ऐसी होगी। तो जैसे ही आपकी 2-3 क्लास पार हो जाएगी तो वो बंदा आपको बोलना ही छोड़ देगा, क्योंकि आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको सारी चीज आपने सुनी होगी और आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। तो जो रोड ड्राइविंग होती है उसमें पहले आपको छोटी गलियों में लेके जाते हैं, फिर आपको मिड हाईवे पे लेके जाते हैं, फिर आपको मेन हाईवे पे लेके जाते हैं। तो जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते रहोगे, जैसे जैसे आप क्लियर करते रहोगे स्टेज, वैसे वैसे आपको उस रोड पे लेके जाएंगे। तो इसमें कुछ बात होती है दोस्तों जो मैंने नोटिस की थी। जब स्कूल आता है तो स्कूल पे 40 जो किलोमीटर की स्पीड होती है हमें उतनी रखनी पड़ती है स्कूल जोन में, और जब राउंड अबाउट होता है हमें चारों मिरर चेक करने पड़ते हैं और देखना पड़ता है किसको वे देना पड़ता है। तो राउंड अबाउट में लोग फेल होते हैं, ये भी ध्यान रखना। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ आपका फाइनल रोड टेस्ट, जो कि आपका लेगा बंदा आरटीए वाला। उससे पहले एक असेसमेंट टेस्ट भी होता है, बट वो स्कूल वाले लेते हैं, वो पास हो जाता है, इतना वो नहीं है। बट जो लास्ट टेस्ट होगा आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर पार्किंग टेस्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर रोड टेस्ट, जब आप बिल्कुल कंफर्म हो गए, बिल्कुल आप तैयार हो गए हो, तो आपको जो फाइनल आप जब टेस्ट बुक करोगे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सब लोग सोचते हैं दुबई में कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप क्लियर कर ही नहीं सकते, फेल करते ही करते स्कूल वाले। ऐसा नहीं है। मेरा जो भाई है उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पास कर लिया था। तो इट्स अबाउट लक, इट्स अबाउट योर स्किल एंड अबाउट योर कॉन्फिडेंस। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो टिप है मेरी तरफ से वो ये है, बिल्कुल ठंडा रहना, बिल्कुल काम रहना, कॉन्फिडेंट रहना। ये मत सोचना 2 मेरे पीछे बंदे बैठे हैं या मेरे साथ जो आरटी वाला जो लोकल गाय बैठा है वो क्या सोचेगा। कुछ नहीं, जैसे आपको गाड़ी चलानी है वैसे ही। दोस्तों
पूरे इस प्रोसेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप टेस्ट, मैं कह रहा हूँ हर एक टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। अगर गलती हो भी जाए थोड़ी सी, फेस पे मत आने देना या कोई ऐसे, डरना मत। अगर आप वो डर गए, वो बंदा जो आपके साथ में बैठा होगा इंस्ट्रक्टर, वो जब भी समझ जाएगा ही इज नॉट कॉन्फिडेंट। और वो लोग यही देखते हैं जो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है उनको लाइसेंस नहीं दिया जाए, क्योंकि वो आगे जाके खुद तो एक्सीडेंट करेगा और दूसरों को भी दिक्कत देगा। तो बेटर, सबसे अच्छा ये है कि आप कॉन्फिडेंस रहो। और वो लोग भी यही चेक करते हैं कि आपका मेन कॉन्फिडेंस कितना है गाड़ी चलाने में। तो मैं बात करता हूँ, जैसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए जाओगे आरटीए में या अपने स्कूल में, तो आपको सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम का टाइम मिलेगा। आई ऑलवेज सजेस्ट सुबह के टाइम बुक करना, और बुक करना सैटरडे और संडे। क्यों करना? क्योंकि सैटरडे संडे दुबई में इतना ट्रैफिक नहीं लगता है, सभी कॉर्पोरेट पीपल की छुट्टी होती है, लोग अपना एंजॉय करते हैं, तो आपको रोड्स बहुत खाली मिलते हैं। तो जैसे ही आप स्कूल में पहुंचोगे, आपको वेटिंग की जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने सुबह का स्लॉट बुक किया है 7 से 9 बजे का, तो आप वहाँ पे 6:30 बजे पहुंच जाना। 7 बजे ही जैसे ही लोकल गाय जो आरटीए वाले आएंगे, वो आपको नाम बोलेंगे, भाई ये बंदा आ जाओ, ये आ जाओ, ये आ जाओ। और एक गाड़ी में 3 बंदे होंगे, आप और 2 आपके साथ जो पीछे जो भी टेस्ट देने के लिए बैठे हैं, और चौथा होगा जो आपका टेस्ट लेने वाला है। जैसे ही आप गाड़ी में जाओगे, आपका अगर फर्स्ट नंबर है तो आप लकी हो। फर्स्ट हाथ घुसते ही गाड़ी बंद करो, सीट बेल्ट लगाओ, मिरर चेक करो। ये मत सोचना कि बार बार किया जाता है, वो ये छोटी छोटी चीज देखते हैं दोस्तों। गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट, साइड मिरर्स, बैक मिरर एडजस्ट करो। पीछे वाले जो बैठे उनको बोलो, गाइज प्लीज वियर द सीट बेल्ट। और वो बंदा अगर नहीं, जिसने जो टेस्ट ले रहा है उसने नहीं पहनी है सीट बेल्ट, उसको भी बोलो, डरना मत। क्योंकि आप, उसकी जिंदगी, सबकी जिंदगी आपके हाथ में है, तो उसको बोलना भी इंपॉर्टेंट है। उसको बोलो, भाई यू ऑल्सो वियर द सीट बेल्ट। सबने सीट बेल्ट लगाई तो फिर आपको बोलना है आई एम रेडी टू गो। तो जैसे ही वो बंदा बोलेगा ओके मूव, तो आप अपना इंडिकेटर दो। आपको राइट लेना या लेफ्ट लेना है, आप मुड़ो और स्ट्रेट चलना लग जाओ। चलते हुए एक चीज ध्यान रखना, जब आपकी ब्रेकिंग होगी, हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी, स्मूथ ब्रेकिंग, ऐसा लगे कि ब्रेक लगे ही नहीं है। और जो लेन चेंज करोगे, अननेसेसरी लेन चेंज बिल्कुल मत करना। अगर आगे जाम लगा हुआ है तो बेशक खड़े हो जाओ। और जो आगे गाड़ी होगी, जो आपकी गाड़ी में डिस्टेंस होना चाहिए इतना कि आप जब बैठे हो उस सामने वाली गाड़ी के आपको टायर दिखे, जो उनके आगे वाली गाड़ी के जो टायर है वो आपको दिखने चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। और फिर आते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो आपको नहीं दिखते, उसके लिए आपको करना है हेड चेक। ऐसे पूरा ऐसे नहीं करना, वो पागल नहीं है इतना, उसको भी पता है, वो गाड़ी उसको टेस्ट लेता है, उसको पता है इतने से कुछ नहीं होता। आपको पूरा ऐसे देखना पड़ेगा। ब्लाइंड स्पॉट इधर है तो ऐसे पूरा देखना पड़ेगा, उधर है तो पूरा ऐसे देखना पड़ेगा। तो ये होता है हेड चेक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक इसी की वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ था। मैंने हेड चेक ऐसे ही किया था, ऐसे मिरर देख के ऐसे ही कर दिया था। उस बंदे ने मेरे को बोला नहीं, बट मेरे को पता ये रीजन यही होगा। तो हेड चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हेड चेक की बारी आए, जब आपको ब्लाइंड स्पॉट चेक करना हो, तो पूरा ऐसे अपना गर्दन घुमा के आपको देखना है, वरना आप फेल हो सकते हो गाइज। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका टाइम बचाएगी ये छोटी चीजें, और आपका पैसा भी बचाएगी। और टेस्ट के दौरान आपको पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग मिलेगी। अगर आपको दिख रहा कोई बंदा क्रॉस करने वाला है, आप रुको, 4 इंडिकेटर दबाओ कि पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाए डेट यू आर ऑन होल्ड टू पास द पेडिस्ट्रियन। जैसे ही वो पास हो जाएगा पूरा, जब तक वो पूरा पास नहीं हो जाता, आपको गाड़ी मूव नहीं करनी है। जब वो जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है हर सिग्नल्स पे, और जब भी राउंड अबाउट के पास, जब तक वो पास नहीं करता आपको गाड़ी नहीं चलानी है। वो पास कर गया, इंडिकेटर बंद करो और अपना स्पीड दो। और फिर जब आपका टेस्ट कंप्लीट होने वाला होगा, एग्जामिनर आपको बोलेगा कि पार्क ऑन योर लेफ्ट और पार्क ऑन योर राइट और पार्क इन दिस। तो कोई भी जैसे सुपरमार्केट होती है या कोई भी जहाँ पे भी उसको पार्किंग स्लॉट दिखेगा, वो आपको बोलेगा कि भाई यहाँ पार्क कर दो। तो आप एंटर लो। एंटर लेते ही अगेन इंडिकेटर का ध्यान रखना। एंटर लेते ही देखो आपको कौन सा स्लॉट सबसे इजी लग रहा है। वो ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पार्क करनी है, वो बोला यहाँ पार्क कर दो, मीन्स वहाँ पे 10 पार्किंग होगी। तो सबसे इजी जो आपको लगे आप वो पार्किंग ढूंढना, कि जहाँ पे 2 गाड़ी के बीच में मत पार्क कर देना, क्योंकि आपको डर लगेगा और टाइम भी लगेगा। तो जहाँ पे 4-5 गाड़ी के बीच में स्पेस होगा ना, वहाँ जाओ। और एंगल पार्किंग भी होगी, वहाँ गैराज भी होगी, जो भी आपको इजी लगे उसमें लगा देना। एंटर करते हुए इंडिकेटर देना है, और जब पार्किंग में जाओ दोबारा इंडिकेटर देना है, हेड चेक करना है। और जब उतरने की बारी आए तो पूरा ब्रेक लगा के, हैंड ब्रेक बिल्कुल मत बोलना, ब्रेक लगाया, हैंड ब्रेक लगाओ और रुक जाओ। उसको बोल दे सर डन, तो वो आप बोलेगा ओके गो बैक। फिर दूसरे का नाम बोलेगा, वो आ गएगा। सीट बेल्ट निकाली, डोर खोला, वो बंदा आएगा, उसके लिए वेट करो। ये होते हैं एथिक्स, कि वो बंदा आया, उसके लिए आपने दरवाजा होल्ड करके रखा, जैसे ही वो अंदर बैठेगा उसके लिए बंद कर दो, ऑल द बेस्ट बोलो उसको। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, वो आप ये छोटी चीज़ें बोलोगे तो एग्जामिनर भी सोचेगा हाँ इज़ अ गुड गाय, उसको पता है कि वो नर्वस नहीं है, ही इज़ इन नॉर्मल स्टेज। तो ऐसे ही उसको बंद करो दरवाज़ा, अपना बोल दो ऑल द बेस्ट बडी, आप जाके पीछे बैठो और सीट बेल्ट लगा लो। और कुछ मत बोलना, अगर वो गलती कर रहा है हंसना मत, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा स्टैचू की तरह बैठने रहना,
क्योंकि एग्जामिनर ये नोटिस करता है हर चीज़। कुछ नहीं पता एग्जामिनर का क्या माइंड हो, क्या आपको फेल कर दे। अपना चुपचाप बैठो, सबका टेस्ट पूरा हो गया, निकलो, और वो आपको बताएगा यू पास, यू पास, यू फेल्ड। वो बोलेगा यू फेल्ड, वाई फेल्ड। वो पूछेगा, आप पूछोगे क्यों फेल्ड, वो आपको बताएगा नहीं रीज़न। बट कुछ होते हैं कि आपको बता सकते हैं कि आपने ये मेजर मिस्टेक थी, आपने ऐसे ब्रेक नहीं दबाया, आपने यहाँ इंडिकेटर नहीं दिया, आपने यहाँ हेड चेक नहीं किया। कुछ होते हैं जो बता देते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं बताते हैं। वो आपको बोलते थे सीधा यू पास, यू पास, यू फेल्ड। तो अब जैसे आप पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आपको 1 मंथ में ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। अगर आप फेल हो गए हो तो आपको दोबारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा, और आई थिंक क्लासेस लेनी पड़ती है उसके बाद। जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुए तो आपको 2 या 3 क्लासेस लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद दोबारा आप टेस्ट बुक कर सकते हो। फिर अगर आप दोबारा फेल होते हो तो फिर आपको दोबारा क्लास लेनी पड़ती है, फिर दोबारा आप अप्लाई करोगे टेस्ट के लिए। तो चांसेस रखना फर्स्ट अटेम्प्ट अपना बिल्कुल अच्छे से देना, कामली देना, पैसे भी बचाएगा आपका, टाइम भी बचाएगा, और आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर आपका लाइसेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया है तो सबसे पहले एंजॉय करो भाई, बिकॉज गेटिंग अ लाइसेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन दुबई इज नॉट अ जोक। हम इंडिया में बोलते हैं इज लाइक अ यूपीएससी क्लियर करना, टू गेट अ दुबई ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों सेम है। क्योंकि इतना मुश्किल होता है दोस्तों, इट टेक्स योर टाइम, इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है तो आपको आरटीई के ऑफिस में जाना पड़ेगा, आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है। आप वहाँ फ़ी पे करोगे, थोड़ा वेट करोगे, आपका लाइसेंस बन रहा होगा, लाइसेंस रिसीव करो, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और कुछ ऐसा दिखेगा आपको लाइसेंस। ये इतना स्ट्रॉन्ग लाइसेंस है दोस्तों, कहीं पे भी जाओ आप, किसी वर्ल्ड में भी, किसी कंट्री में जाओ, आपको ये लाइसेंस दिखाओगे तो आपको इजीली ड्राइव कर सकते हो। सो यस गाइस, गेटिंग योर दुबई ड्राइविंग लाइसेंस इन जस्ट 1 month is possible if you stay consistent, if you choose express course and pass the test in first attempt. I hope this guide will save your money, your time and stress. If you find this video useful, so make sure you like, subscribe and share with the people who are thinking to get a Dubai driving license. Or if you are from India or Pakistan or Nepal and you are planning to come to Dubai, share with those people, the new beginners and the new people coming to Dubai. So मिलते जल्दी किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखना। हर हर महादेव दोस्तों। Got too many flows, I be killing them. Oh baby, tell me, say she feeling them.